নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ভাৰতৰ হিন্দু লোকসকল সাৱধান হৈ থাকক, সতৰ্ক হৈ থাকক। ভাৰতৰ হিন্দু লোকসকল একত্ৰিত হৈ থাকক, কোনো দুৰ্বল হৈ নাথাকিব। দুৰ্বল হোৱাটো অপৰাধ, দুৰ্বল হলে অপৰাধ বা অত্যাচাৰ কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াটো বুজায়। এই মন্তব্য কৰিছে, এই আহ্বান জনাইছে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। বাংলাদেশ প্ৰসংগ টানি আনি আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে ভাৰতৰ সকলো হিন্দু লোকক একলগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে, বৰ্তমান সময়ত বাংলাদেশে ভাৰতক শত্ৰু বুলি গণ্য কৰে। বাংলাদেশে ভাৰতক নিজৰ শত্ৰু বুলি ভাবিবলৈ ধৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে পাকিস্তানক নিজৰ বন্ধু বুলি ভাবিবলৈ ধৰিছে বাংলাদেশে। সেইবাবে এই সময়ত এই সময়ছোৱাত সকলো হিন্দু লোকসকল একত্ৰিত হৈ থাকক, এই আহ্বান জনাইছে মোহন ভাগৱতে। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এই ডাঙৰ খবৰ, ভাৰতক শত্ৰু ভাবি বিপথে পৰিচালিত হৈছে বাংলাদেশ। ভাৰতক নিজৰ শত্ৰু বুলি মানিবলৈ লৈছে বাংলাদেশে। ভাৰতৰ সহযোগত নিৰ্মাণ হোৱাৰ বাংলাদেশ আজি পাকিস্তানৰ কাষ চাপিছে। পাকিস্তানক নিজৰ বন্ধু বুলি ভাবিছে বাংলাদেশে। ভাৰতৰ বাবে বাংলাদেশত বিপদ বাঢ়িব বুলি ভাবিছে জনতাই। ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশক উচতাইছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই। সতৰ্ক হৈ থাকক ভাৰতৰ হিন্দু লোকসকল। ভাৰতৰ সকলো হিন্দু লোকসকল একত্ৰিত হৈ থাকক, একলগ হৈ থাকক। দুৰ্বল হৈ থকাটো অপৰাধ, একগোট হৈ থাকক হিন্দুসকল। আপোনালোক দুৰ্বল হৈ নাথাকিব। কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰি থাকিলে সেয়া সহ্য কৰি থকাটো উচিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে মোহন ভাগৱতে। কেৱল ইমানেই নহয়, দুৰ্বল হৈ থকা মানে অত্যাচাৰ চলাবলৈ সুযোগ দিয়া বুজায়। বাংলাদেশৰ হিন্দুৱে নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিছে। কোনো লোকৰ সৈতে আমি শত্ৰুতা কৰিব নালাগে। বাংলাদেশত বৃদ্ধি পাইছে ভাৰত বিৰোধী শক্তি, এই মন্তব্য কৰিছে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। মোহন ভাগৱতৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে, ভাৰতক নিজৰ শত্ৰু বুলি বৰ্তমান সময়ত মানিবলৈ ধৰিছে, ভাবিবলৈ ধৰিছে বাংলাদেশে। সেইবাবে ভাৰতৰ হিন্দুসকল সতৰ্ক হৈ থাকক। এতিয়া সময়ছোৱাত বাংলাদেশে পাকিস্তানক নিজৰ বন্ধু বুলি ভাবে। ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতক নিজৰ শত্ৰু বুলি ভাবিবলৈ ধৰিছে বাংলাদেশে। ভাৰতৰ বাবে বাংলাদেশত বিপদ বাঢ়িব বুলি ভাবিছে জনতাই। আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান সময়ত বাংলাদেশক উচতাইছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই। সেইবাবে ভাৰতৰ হিন্দু লোকসকল সতৰ্ক হৈ থাকক, সাৱধানে থাকক, একত্ৰিত হৈ থাকক, একলগ হৈ থাকক। দুৰ্বল হৈ কোনো নাথাকিব, কাৰণ দুৰ্বল হৈ থকাটো এটা অপৰাধ। দুৰ্বল কোনো হৈ নাথাকিব, এই আহ্বান জনাইছে মোহন ভাগৱতে। কিয়নো দুৰ্বল হৈ থকা মানে অত্যাচাৰ চলাবলৈ সুযোগ দিয়া বুজায় বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মোহন ভাগৱতে। এই মুহূৰ্তত মোহন ভাগৱতৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে, কি কৈছে শুনো আহক। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है। क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे, और इसलिए भारत का यह सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म,
कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है। क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे, और इसलिए भारत का यह सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है। क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे, और इसलिए भारत का यह सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है।
क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगी और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने। ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है। क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगी और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने। ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है। क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगी और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने। ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले,
ये किन किन देशों की हित की बात है, ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे, और इसलिए भारत का यह सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है, और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है, ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे, और इसलिए भारत का यह सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में